پیشکش میر کارواں۔ میں گارڈ ہوں، جانکی نے کرہاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہری ہو رہی تھی۔ اس طرف ان جھاڑیوں کے پیچھے بھانگ زخمی حالت میں پڑا ہے، میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے بھی زخمی کر دیا۔ اسے پکڑو، جنرل کھوراٹ سے نام لینا چاہتے ہو تو پکڑ لو اسے۔ جانکی بہت شاندار اداکاری کر رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ ایک محافظ نے پوچھا۔ اکیلا ہے، میں نے اسے زخمی کر دیا، وہ بھاگ نہیں سکتا، میرے ساتھ آؤ جلدی۔ ان محافظوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جانکی کو کہاں زخم لگا ہے اور وہ اس وقت یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ بھانگ کو گرفتار کر کے انہیں جنرل کھوراٹ کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع مل سکتا تھا، انعام کی بھی توقع تھی اور وہ لوگ یہ موقع کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جانکی انہیں ڈھلان پر لے آئی۔ میں، سونیا اور بوما کے ساتھ جھاڑیوں میں تیار بیٹھا تھا۔ ہم تینوں کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ ہمارے پاس اگرچہ آٹومیٹک رائفلیں بھی موجود تھیں، لیکن اس وقت ہم نے خنجروں سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاروں محافظ جیسے ہی جھاڑیوں سے آگے نکلے، ہم تینوں نے بیک وقت چھلانگیں لگا دی۔ 3 محافظوں کو ہم تینوں نے چھاپ لیا اور چوتھے کو جانکی نے گرفت میں لے لیا۔ محافظوں کے لیے یہ صورتحال بالکل غیر متوقع تھی۔ رائفلیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور وہ ڈھلان پر ہمارے ساتھ لڑکتے چلے گئے۔ ان پر قابو پانا آسان ثابت نہیں ہوا۔ 3 کے تو ہم نے گلے ادھیڑ دیے، لیکن چوتھا زخمی ہو کر سونیا کی گرفت سے بھاگ نکلا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور تقریباً 15 گز کے فاصلے پر میں نے اسے جا لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے بری طرح چیخ رہا تھا، لیکن اسے زمین پر گراتے ہی میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ میں نے اس کے لباس سے اپنا خنجر صاف کیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا۔ کیا رہا؟ جانکی نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ اگر بچ کر نکل جاتا نا تو غضب ہو جاتا، اب جلدی کرو۔ اس کے چیخنے کی آواز سناٹے میں دور دور تک گئی ہوگی۔ میں نے جانکی کے ہاتھ سے اپنی رائفل لی اور ہم تیز تیز قدموں سے لیبارٹری کی طرف جانے لگے۔ لیبارٹری تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ لیبارٹری کی عمارت ایک خوبصورت بنگلے کی طرح تھی، جس کے سامنے گیٹ پر تیز روشنی کا بلب جل رہا تھا اور عمارت کے اندر بھی روشنی ہو رہی تھی۔ ان چاروں محافظوں کو ہم نے دور سے ہی گیٹ کے سامنے کھڑے دیکھ لیا تھا۔ شاید ہمیں چند منٹ کی دیر ہو گئی تھی اور وہ محافظ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان فاصلہ 30 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ بوما نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی اور ایک طرف ڈھلان پر اترتا چلا گیا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ان محافظوں میں 3 لڑکیاں تھیں اور مرد صرف ایک تھا۔ جیسے ہی ہم قریب پہنچے، مرد نے باری باری ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم لوگ 3 منٹ لیٹ ہو، چوتھا ساتھی کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس طرف رک گیا ہے۔ سونیا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تم لوگ کو تو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اس آدمی کو شاید کسی قسم کا شک ہو گیا تھا۔ حالات سے تم اچھی طرح واقف ہی ہو، بیشتر لوگوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے۔ 30 آدمیوں کا گروپ آج دوپہر ہیڈ کوارٹر سے یہاں پہنچا ہے، ہم بھی اسی گروپ میں شامل تھے۔ اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے تو ٹیلی فون پر کنٹرول روم سے ہمارے بارے میں تصدیق کر سکتے ہو۔ سونیا نے کہا، شبہ کی بات نہیں ہے، بہرحال تم لوگ اپنی ڈیوٹی سنبھالو، ہم جا رہے ہیں، ہم سب کو بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ چاروں اپنی اپنی رائفلیں کندھوں پر لٹکائے بستی کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑے۔ میں انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ہمارے بارے میں مشکوک ہو چکا ہے۔ یہاں سے ٹیلی فون پر اس نے تصدیق کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ ہم ہوشیار ہو جاتے، لیکن مجھے یقین تھا کہ کنٹرول روم پہنچتے ہی وہ ہمارے بارے میں تصدیق کرے گا۔ اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد بوما بھی تاریکی سے نکل آ گیا۔ وہ پیشاب کرنے کے بہانے ہم سے الگ ہو گیا تھا تاکہ پہچان نہ لیا جائے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہم سونیا کو گیٹ پر چھوڑ کر اندر آ گئے۔ چند منٹ میں ہم نے عمارت کا باہر سے جائزہ لینے میں گزار دیے۔ بوما بتا رہا تھا کہ ٹرائنگل میں واقع متعدد لیبارٹریوں میں ہفتے میں 5 دن کام ہوتا ہے۔ ہر لیبارٹری اپنے علاقے میں پیدا ہونے والی فصل سے افیون، مارفین اور ہیروئن تیار کرتی ہے۔ ہیروئن مارفین سے تیار کی جاتی ہے۔ پچھلے سیزن کی مارفین ابھی اتنی مقدار میں موجود تھی کہ پوسٹ کی تازہ فصل حاصل ہونے تک وہی مارفین ہیروئن کی تیاری کے لیے استعمال ہوتی رہے گی۔ ہم عمارت کے اندر آ گئے۔ مرکزی ہال میں داخل ہوتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مرکری کی سفید دودھیا روشنی میں کئی جدید ترین مشینیں اور آلات نصب تھے۔ یہ وہ مشینیں تھیں جن سے مارفین سے ہیروئن اور دیگر منشیات تیار کی جا رہی تھیں۔ وہ 4 آدمی تھے جو سفید لیب کوٹ پہنے مختلف مشینوں کے پاس کھڑے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے بوما کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا، جانکی کو دائیں طرف بھیجا اور خود بائیں طرف بڑھ گیا۔ 2 ڈاکٹرز نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو خیال نہیں کیا، پھر ان میں سے ایک چونکا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے دوسرے ساتھی کے قریب پہنچ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کر کے آگے بڑھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی جیسے ہی دیوار میں لگے سوئچ کی بورڈ کی طرف بڑھا، بوما نے فائر کر دیا۔ وہ آدمی چیخ کر نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ وہ شخص الارم کا بٹن دبانے جا رہا تھا۔ بٹن دبتے ہی کنٹرول روم میں الارم بجنے لگتے اور لاتعداد محافظ اس طرف دوڑ جاتے۔ تم چاروں ایک طرف جمع ہو جاؤ، اس میز کے قریب، جلدی کرو۔ بوما نے چیختے ہوئے دیوار کے قریب پڑی ہوئی میز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاروں میز کے قریب جمع ہو گئے۔ انہوں نے خود بخود ہاتھ سر سے بلند کر لیے تھے۔
हथियार फेंक दो बूमा, वरना मैं इस लड़की की खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। यह आवाज सुनकर मैंने तेजी से मुड़कर उस तरफ देखा। सफेद लैब कोट वाला एक आदमी जानकी की कनपट्टी से रिवॉल्वर लगाए खड़ा था। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और मैंने बूमा की तरफ देखते हुए अपनी राइफल फेंक दी। तुम तो छुपे रुस्तम निकले बूमा। सब यही समझ रहे थे कि इन लोगों को फांग ने पनाह दे रखी है। और उस रात दारा वाले कॉटेज पर हमले में भी वही शरीक था। कॉटेज के कमरे से मिलने वाला फांग का वॉलेट तो कम से कम इस शुबे की तस्दीक करता था, लेकिन अब पता चला कि हम उस बेचारे को बिला वजह मुरद्दल इल्जाम ठहराते रहे। अब ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि फांग को तुम लोगों ने कत्ल करके उसकी लाश गायब कर दी है, और सब लोग यही समझते रहे कि वो गद्दारी करके मदाखलतकारों से मिल गया है और उसने उन लोगों को पनाह दे रखी है। लेकिन नहीं, गद्दार वो नहीं, तुम हो। तुमने इन्हें अपने कॉटेज में पनाह दे रखी है और इसलिए इन लोगों को अब तक तलाश नहीं किया जा सका। मैं बताता हूँ ये सब किस तरह हुआ होगा। वो आदमी चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मेरी समझ में बात कुछ इस तरह आती है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह तुम्हारी बीवी से भी दिल बहलाना चाहता था। हो सकता है वो इसी नियत से तुम्हारे कॉटेज की तरफ गया हो और वहां इन लोगों से सामना हो गया हो। उसकी जिंदगी इन लोगों के लिए, बल्कि तुम लोगों के लिए भी मौत का पैगाम बन सकती थी। इसलिए उन्होंने फांग को कत्ल करके लाश गायब कर दी, और मुझे यकीन है वो लाश तुम्हारे कॉटेज के आसपास ही कहीं किसी जगह दफन की गई होगी। उसे तलाश कर लिया जाएगा। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि तुमने जलन खुराट से गद्दारी क्यों की। इन्होंने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया था कि तुम ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए। मैंने जलन खुराट से गद्दारी नहीं की डॉक्टर क्रूक, बूमा ने जवाब दिया। जलन खुराट से इन्हें भी कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो दारा और उसके साथियों के ताक़ुब में यहाँ आए थे। दारा इनके माँ बाप का कातिल है। उसने दर्जनों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। वो दुनिया का सफाक तरीन आदमी है। आदमी नहीं, खूनी भेड़िया है। उसकी सफाकी का मुजाहरा तुम देख चुके हो। वो इनकी एक दोस्त थाई को उठा लाया था जो जख्मी थी। तुमने उसका इलाज शुरू किया तो 2-3 दिन बाद दारा ने तुम्हें इलाज से रोक दिया। उसने थाई को हेरोइन का आदी बना दिया और फिर वो अपने हैवानी जज्बात की तस्कीन के लिए उसे तड़पाता रहा है। वो एक बेबस और कमजोर औरत पर जुल्म करके खुश हो रहा है, लेकिन वजदान का नाम सुनते ही वो खौफ से थर थर कांपने लगता है। वो उसके नाम से इस कदर खौफजदा है कि मुहाफिजों की मौजूदगी के बावजूद उसे रात को नींद नहीं आती। क्या ऐसे आदमी को जिंदा रहने का हक है? मैंने सिर्फ दारा और उसके साथियों के खिलाफ इनका साथ दिया है। मैंने जलन खुराट से गद्दारी नहीं की। मैंने सोचा था ये लोग दारा वगैरह से अपना इंतकाम लेकर वापस चले जाएंगे तो मैं पहले की तरह यहाँ जलन खुराट के लिए खिदमत अंजाम देता रहूंगा। हाँ, फांग के कत्ल की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। तुम खुद ही एतराफ़ कर चुके हो कि वो मेरी बीवी से दिल बहलाना चाहता था, और उस रोज वो इसी नियत से मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कॉटेज में गया था, पर अपनी जान से हाथ धो बैठा। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी लाश मेरे कॉटेज के पिछली तरफ दरख्तों के नीचे दफन है, और जिस रात दारा के कॉटेज पर हमला किया गया था वजदान ने फांग का ड्रेस पहन रखा था और उसकी जेब से फांग का वॉलेट वहां गिर गया था, और उससे ये समझ लिया गया कि फांग गद्दार है और उन लोगों के साथ मिल गया है। इसका फायदा यह हुआ कि हमारी तरफ किसी का शुबा नहीं गया। पर अब हर बात खुलकर सामने आ गई है। अगर तुमने जलन खुराट से गद्दारी नहीं की तो इन लोगों को यहाँ साथ लेकर आने का क्या मकसद है? और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ ड्यूटी पर आने वाले मुहाफिजों को भी तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। डॉक्टर क्रूक ने कहा, मैं तुम्हारे इस यकीन को झुटलाऊंगा नहीं। यहाँ आने का मकसद यह है कि हम ये लेबॉर्ट्री तबाह करना चाहते हैं। मैं अगरचे बर्मा में तरियाड में रहते हुए जलन खुराट के एजेंट की हैसियत से हेरोइन फरोख्त करता रहा हूँ, लेकिन इनकी दोस्त थाई को देखने से पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि हेरोइन के असरात कितने तबाहकुन होते हैं। सिर्फ 1 या 2 लेबॉर्ट्रियों को तबाह करके हम पूरी दुनिया में हेरोइन के सप्लाई को रोक नहीं सकते, लेकिन इसमें अपना थोड़ा बहुत किरदार तो अदा कर सकते हैं। और तुम समझते हो कि अपने मकसद में तुम कामयाब हो जाओगे? डॉक्टर क्रूक ने उसे घूरा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी एक अदद हसीन और जवान बीवी भी है, एक प्यारा सा बच्चा है। उनके बारे में तुमने नहीं सोचा? ये तो मौत की वादी है। तुम लोग यहाँ से जिंदा कैसे निकल सकोगे? और एक बात और बता दूं, उस रोज तुम्हारी बीवी बच्चे के बीमार होने का बहाना करके मेरे दफ्तर में आई थी तो लिक्विड हेरोइन की शीशी और एक सिरंज चुरा कर ले गई थी। मैंने उस वक्त तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है कि वो हेरोइन उस औरत के लिए चुराई गई थी जिसे तुम लोग दारा के कॉटेज से उठाकर ले गए थे। अगर पहले ये बात मेरे जहन में आ गई होती तो मामला कब का खत्म हो चुका होता। उसकी बातों से मुझे ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि डॉक्टर क्रूक नामी ये शख्स ही बस्ती वाले क्लिनिक में बैठता था। जब हम हॉल में दाखिल हुए तो सिर्फ उन 4 डॉक्टरों को ही देख सके जो हमारे सामने थे। डॉक्टर क्रूक गालिबन उस वक्त किसी मशीन के पीछे था जो हमें नजर नहीं आ सका, और उसने मौका मिलते ही जानकी को रिवॉल्वर की जद पे ले लिया था और उसकी खोपड़ी उड़ा देने की धमकी देकर हमें भी निहत्था कर दिया था। डॉक्टर साइमन, क्रूक उन 4 में से एक को मुखातिब करते हुए बोला, अलार्म का बटन दबा दो और इनकी राइफलें उठा लो। एक आदमी ने स्विच बोर्ड पर सुर्ख रंग का एक बटन दबा दिया। उसके साथ ही सुर्ख रंग का एक बल्ब रोशन हो गया। कंट्रोल रूम में बजने वाला अलार्म से इन लोगों को इत्तला मिल गई थी कि यहाँ कोई गड़बड़ है।
दर्जनों मुहाफिज चंद मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे और तुम लोगों की कहानी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर क्रूक ने कहा। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने ये सोच लिया था कि सोनिया बाहर गेट पर थी। उसे सूरत हाल का इल्म नहीं था। उसे पता उस वक्त चलेगा जब दर्जनों मुहाफिज सर पर पहुंच गए होंगे और वो कुछ नहीं कर सकेगी। 2 आदमी हमारी राइफल उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने और बूमा ने मायनेखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ करते, हॉल फायर की आवाज से गूंज उठा और उसके साथ ही क्रूक चीखता हुआ पीछे की तरफ गिरा। जानकी बड़ी तेजी से उछलकर एक तरफ हट गई थी। मैंने मुड़कर देखा। सोनिया दरवाजे के करीब एक मशीन की आड़ में खड़ी थी। उसका निशाना इतना शानदार था कि गोली डॉक्टर क्रूक की गर्दन में सुराख करती हुई निकल गई थी। मैंने और बूमा ने बैक वक्त राइफलों की तरफ छलांग लगा दी। राइफलें कब्जे में आते ही हमने चारों पर फायर खोल दिया। वो चीखते हुए फर्श पर गिरे। उनके सफेद लिबास सुर्ख होने लगे। जानकी ने भी राइफल उठा ली। डॉक्टर क्रूक की गर्दन में गोली लगी थी। उसके जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन जानकी ने फिर भी कई गोलियां उसके सीने में उतार दी। हमने भी इत्मीनान कर लिया कि इन चारों में से कोई जिंदा नहीं बचा। और फिर हम चारों ने अपनी राइफलों के रुख उन जदीद तरीन मशीनों की तरफ मोड़ दिए जिनसे हेरोइन तैयार की जाती थी। तमाम मशीनें नाकारा करके मैंने दीवार पर इलेक्ट्रिक पैनल पर एक ब्रस्ट मार दिया। इलेक्ट्रिक पैनल से पहले नीली शुआएं और चिंगारियां फूटी, फिर शोले निकलने लगे। ये बिजली की आग थी जो चंद मिनट के अंदर अंदर सारी इमारत को अपनी लपेट में लेने वाली थी। मैंने चीखकर अपने साथियों को हुक्म दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। बूमा वगैरह ने भी मेरे पीछे दौड़ लगा दी। बस्ती की तरफ बहुत दूर से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। वो गालिबन कई मुहाफिज थे जो फायरिंग करते हुए इसी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। इस तरफ, जल्दी करो। बूमा एक तरफ इशारा करते हुए चीखा। हम लेबोरेटरी की इमारत के पीछे मुड़कर मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे। लेबोरेटरी के अकब में वाक़ पहाड़ी 250-300 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। हमारे कॉटेज की तरफ जाने वाला रास्ता अगरचे दाएं तरफ था, लेकिन हम उस पहाड़ी पर चढ़ते चले गए। बूमा सबसे आगे था, उसके पीछे जानकी और आखिर में मैंने सोनिया का हाथ पकड़ रखा था। वो पहाड़ी किसी टीले की तरह थी, हमवार लेकिन कद्दे आदम झाड़ियों और दरख्तों की बहुतात थी। चोटी पर पहुंचकर हम रुक गए। सोनिया बुरी तरह हाँप रही थी। लेबोरेटरी में 1-2 जगह से शोले उठ रहे थे जो इस अमर का इशारा दे रहे थे कि चंद ही मिनट में पूरी इमारत शोलों की लपेट में आने वाली थी। मैं बस्ती से आने वाले रास्ते की तरफ देखने लगा। फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और लेबोरेटरी से 200-250 गज दूर रहकर शोले से चमकते नजर आ रहे थे। मुझे समझने में देर न लगी कि मुहाफिज अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दौड़े आ रहे थे। बूमा ने अपनी राइफल का रुख आसमान की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। लातादाद गोलियां रोशनी की लकीर से बनाती ऊपर की तरफ चली गईं और फिर उसी वक्त लेबोरेटरी में जोरदार धमाका हुआ। शायद केमिकल का कोई ड्रम फटा है, बूमा ने नीचे देखते हुए कहा। लेबोरेटरी में से केमिकल के लातादाद ड्रम मौजूद हैं जो हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ लातादाद धमाके होंगे। चंद मिनट बाद ये इमारत भी तिनकों की तरह उड़ जाएगी। बेहतर है कि अब हम। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही एक के बाद दीगरे 3 और धमाके हुए और लैब की इमारत में आग फैलती चली गई। हम दूसरी तरफ ढलान पर उतरने लगे। मैंने उस वक्त भी सोनिया का हाथ थाम रखा था। पहाड़ी के दामन में पहुंचकर भी हम दौड़ते रहे। अब मुसलसल धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी और धमाकों के बीच में वो आवाज भी सुनाई देने लगी जिसके हम मुंतजिर थे। वो फायरिंग की आवाजें थी। मैंने मुड़कर देखा। पहाड़ी की चोटी पर 6-7 इंसानी हिवले नजर आ रहे थे। पहाड़ी की दूसरी तरफ जलती हुई लेबोरेटरी से उठने वाले शोलों की रोशनी के पसे मंजर में वो हिवले साफ दिखाई दे रहे थे। हम इन्हें नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। हम एक बरसाती नाले के किनारे पहुंच गए। यह नाला 5-6 फुट गहरा और 10-12 फुट चौड़ा था, लेकिन पानी उसके बीच में 2-2.5 फुट चौड़ी लकीर की सूरत में बह रहा था। हम उस नाले में उतर गए और बूमा की रहनुमाई में तेजी से एक तरफ दौड़ते चले गए। उस बल खाते हुए बरसाती नाले में तकरीबन 1 मील का फासला तय करके हम बाहर आ गए। बूमा ने एक ऊंची जगह पर पहुंचकर इधर उधर देखा और हमने एक बार फिर एक तरफ दौड़ लगा दी। लेबोरेटरी की तरफ से अब भी धमाके सुनाई दे रहे थे और पहाड़ियों के अकब में रोशनी साफ नजर आ रही थी। जानकी और सोनिया की हालत बुरी हो रही थी। वो दोनों बुरी तरह हाँप रही थी। मैं सोनिया का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ दौड़े चला जा रहा था। बूमा ने जानकी का हाथ पकड़ लिया था और वो भी उसे घसीट रहा था। वो दोनों लड़खड़ा रही थी। हम एक जगह पर रुक गए। सोनिया और जानकी जमीन पर बैठ गई। उनके सांस बुरी तरह फूले हुए थे और मुंह से कफ बह रहा था। हम उस वक्त तक लेबोरेटरी से तकरीबन 2.5 मील दूर निकल आए थे और उसके मुखालिफ सिमत बहुत दूर से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लोग हमें दूसरी तरफ तलाश कर रहे थे। हम लोग अभी खतरे से बाहर नहीं हुए। थोड़ी ही देर में गार्ड्स हशरातुल अर्ज की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और इससे पहले हमें अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। जानकी और सोनिया भी किसी हद तक अपने आप पर काबू पा चुकी थी। हम एक बार फिर दौड़ने लगे और बिला आखिर एक तवील चक्कर काटकर हम अपने कॉटेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गए। उसी वक्त फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज भी गूंजने लगी। हमने अपनी रफ्तार तेज कर दी। हम बिल्कुल मुखालिफ सिमत से कॉटेज की तरफ आए थे और जब हम कॉटेज से कुछ दूर रह गए तो मैंने गर्दन घुमाकर लेबोरेटरी की तरफ देखा। उस तरफ अब भी रोशनी नजर आ रही थी।
जिसका मतलब था कि लेबोरेटरी में अब भी आग भड़क रही थी। कॉटेज से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं ठिठक गया और फिर बूमा वगैरह ने भी उस साय को देख लिया जो कॉटेज के सामने वाले दरवाजे से निकलकर लड़खड़ाता हुआ बस्ती की तरफ जा रहा था। कॉटेज से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे ये तो थाई है। जानकी की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। उसी वक्त उस तरफ रोशनी थी। अगर थाई किसी की नजरों में आ गई तो कयामत ही आ जाएगी। दूसरे ही लम्हे मैंने थाई की तरफ दौड़ लगा दी। वो तकरीबन 30 गज दूर निकल गई थी। मुझे देखकर वो दौड़ने लगी। मैंने लपक कर थाई को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा तो वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं भी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और उसके ऊपर गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को संभालकर थाई को कंधे पर लादा और कॉटेज की तरफ दौड़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने थाई को दरी पर लेटाया और दीवार से टेक लगाकर हाँफने लगा। हूफा भी दूसरे कमरे से निकल आई थी। उसने बच्चे को सीने से लगा रखा था जो बुरी तरह रो रहा था। तुमने ख्याल नहीं किया? ये बाहर निकल गई थी। बूमा ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, अगर हम बर वक्त यहाँ ना पहुंच जाते ना तो ये आगे चली जाती और हम सब पर कयामत टूट पड़ती। हूफा का चेहरा धुआं हो गया। उसकी आंखों में वहशत भर गई। मुझे पता ही नहीं चला, बच्चा रो रहा था, मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे खैरियत गुजरी कि हम बर वक्त यहाँ पहुंच गए और इसे देख लिया। मैंने हूफा की बात काटते हुए कहा। थाई का नशा टूट रहा था। शाम को जानकी ने उसे बहुत कम मिकदार में हीरोइन दी थी। उसे इस बुरी तरह से हीरोइन का आदी बना दिया गया था कि दी जाने वाली मामूली सी मिकदार ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई थी। मैंने जानकी को इशारा किया। उसने हीरोइन की मामूली सी मिकदार इंजेक्शन के जरिए थाई के जिस्म में दाखिल कर दी। थाई पुरसुकून होती चली गई। उस वक्त 10 बज रहे थे। जब हम यहाँ से रवाना हुए तो शाम के 7 बजने वाले थे। गोया 3 घंटे गुजर चुके थे और इन 3 घंटों में हमने वो कारनामा अंजाम दे डाला था जिसका आम हालात में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। जनरल खोराट की हीरोइन तैयार करने वाली एक फैक्ट्री तबाह हो गई थी। उससे हीरोइन की सप्लाई पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनरल खोराट का करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका था। जदीद तरीन मशीनरी जलकर तबाह हो चुकी थी। ये लेबोरेटरी तबाह करके हमने जनरल खोराट से बराह रास्त टक्कर ले ली थी, जिससे हमारे लिए खतरात बढ़ गए थे। मैंने डॉक्टर क्रूक की बातों से अंदाजा लगाया था कि वो तुम्हारे कंट्रोल सेंटर में मरीजों को देखता है, लेकिन वो लेबोरेटरी में कैसे पहुंच गया? मैंने बूमा से पूछा। वो भी हीरोइन तैयार करने का माहिर है, कभी कभी लेबोरेटरी में भी चला जाता है। उसने जब जानकी को गन पॉइंट पर लेकर हमारे हथियार फिकवा दिए थे तो मैं समझ गया था कि हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे। मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था, लेकिन सोनिया ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अगर निशाना खता हो जाता तो क्या होता? जानकी ने उसकी बात काटी। इसकी चलाई हुई गोली डॉक्टर के बजाय मेरी खोपड़ी उड़ा देती। मैंने कॉलेज में शूटिंग के मुकाबलों में पहला इनाम हासिल किया था। 5 साल तक मेरा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। मैंने डॉक्टर क्रूक का निशाना लिया तो मुझे अपने आप पर पूरा एतमाद था। लेकिन तुम्हें तो गेट पर ड्यूटी सौंपी गई थी ना, अंदर कैसे आ गई? ये तय हुआ था कि तुम लोग गोली चलाए बगैर लेबोरेटरी में मौजूद लोगों पर काबू पाने की कोशिश करोगे, लेकिन जब गोली चली तो मेरा चौंक जाना फितरी बात थी। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हो गई और फिर जो सूरत हाल नजर आई वो खासी तशवीशनाक थी। मैं एक मशीन के पीछे छुप गई और डॉक्टर क्रूक की खोपड़ी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली अगरचे निशाने से चंद इंच नीचे लगी, लेकिन बहरहाल मकसद तो पूरा हो गया ना। हूफा की गोद में बच्चा अब भी रो रहा था। सोनिया ने आगे बढ़कर बच्चे को ले लिया और हैरत की बात यह हुई कि बच्चा उसकी गोद में आते ही चुप हो गया। हूफा उसे घूरती हुई किचन में चली गई। आधे घंटे बाद हम बैठे खाना खा रहे थे। अभी खाना खत्म नहीं हुआ था कि धमाके की आवाज सुनकर हम सब उछल पड़े। वो धमाका दरअसल दरवाजे की आवाज थी जो जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर चेहरे पर खौफ नुमाया था। दरवाजे पर जैसे हथौड़े बरसाए जा रहे थे। तुम लोग इसी कमरे में रहो, दरवाजा बंद कर लो, कोई गड़बड़ हुई तो मैं सिग्नल दे दूंगा। बूमा ये कहते हुए झटके से उठ गया। हूफा भी बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और बीच का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जानकी की मदद से थाई को उठाकर दीवार के साथ लपटा दिया और हम तीनों राइफलें लेकर दरवाजे के दाएं बाएं दीवार से चिपक गए। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी थी। बूमा अपने कमरे का दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं सांस रोके खड़ा बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर उन्होंने हमारा पता लगा लिया तो यकीनन इस कॉटेज को भी घेरे में ले लिया जाएगा। किसी गड़बड़ की सूरत में मैंने बराह रास्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। हम अपने आप को आसानी से उनके हवाले नहीं कर सकते थे। क्या बात है शौन, कयामत आ गई है जो इस तरह दरवाजा धड़धड़ा रहे हो? बाहर से बूमा की आवाज आई। कयामत ही आ गई है, तुम्हें फौरी तौर पर कंट्रोल रूम में तलब किया गया है। कयामत? ये धमाके कैसे थे? क्या हुआ? नंबर 2 वाली लैब तबाह कर दी गई है। जनरल खोराट भी हेडक्वार्टर से यहाँ पहुंच गया है। तमाम गार्ड्स को कंट्रोल रूम में तलब किया गया है। तुम फौरन वहां पहुंचो। मैं शोमा की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है,
तुम चलो, मैं भी रवाना होता हूँ। बूमा ने जवाब दिया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हम पर आने वाली कयामत एक बार फिर टल गई थी। जिस तरह दरवाजा धड़धड़ाया गया था उससे ना सिर्फ हमारे पसीने छूट गए थे बल्कि हुफा के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी थी। लेकिन बाहर होने वाली गुफ्तगू सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कमरे की बत्ती जलाकर बीच का दरवाजा खोल दिया। हुफा भी राइफल संभाले अपने कमरे के दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। उसने भी बाहर से बूमा और शोन की गुफ्तगू सुन ली थी और उसके चेहरे की रंगत भी लौट आई थी। उसने राइफल एक तरफ रखी और कमरे के कोने में दरी पर सोए हुए बच्चे को आराम से उठाकर पलंग पर लेटा दिया। बूमा दरवाजा बंद करके अंदर आ गया और शौक से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। मैं खामोशी से सुनता रहा। ट्रायंगल पर वाकई कयामत आ गई है। माजी में बर्मा, लाओस और थाईलैंड की तरफ से भी हमले होते रहे, पर इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। लैब की तबाही कोई मामूली वाकया नहीं है। जनरल खोराट भी इत्तला मिलते ही यहाँ पहुंच गया है, बूमा कह रहा था। मुझे याद आया कि जब हम कॉटेज की तरफ आ रहे थे तो हमने फिजा में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। उस वक्त मेरे जहन में ख्याल उभरा था कि शायद हेलीकॉप्टर के जरिए भी हमारी तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन वो कॉप्टर की आवाज थोड़ी देर बाद ही गायब हो गई थी। अब ये इंकशाफ मेरे लिए बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि उस कॉप्टर पर जनरल खोराट यहाँ आया था। बूमा 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर कंट्रोल रूम की तरफ रवाना हो गया। वो हमारे साथ जिंदगी के एक निहायत सनसनीखेज तजुर्बे से गुजरा था। 3 घंटों की मुसलसल भागदौड़ से वो न सिर्फ बुरी तरह थका हुआ था बल्कि जहनी तनाव का शिकार भी रहा होगा, और मुमकिन है कंट्रोल रूम के बुलावे से आसाबी कशीदगी में इजाफा भी हो गया हो, पर वहां जाना जरूरी था। अगर कोई बहाना बनाकर इनकार कर देता वो तो उस पर किसी किस्म का शुबा हो सकता था। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि खैरियत गुजरे। बूमा की वापसी 2 बजे के करीब हुई। वो बड़ी सनसनीखेज खबरें लेकर आया था। जनरल खोराट पागल हो रहा था। ट्रायंगल की तारीख में यह पहला वाकया था कि इस तरह कोई लेबॉर्ट्री तबाह की गई थी। जनरल खोराट ने न सिर्फ यहाँ के कमांडर को गोली से उड़ा दिया बल्कि लैब से ड्यूटी खत्म करके वापस जाने वाले 4 मुहाफिजों को, जिनमें 1 मर्द और 3 लड़कियां शामिल थीं, फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया। उनका कसूर यह था कि ड्यूटी पर आने वाले नए मुहाफिजों पर शुबा होने के बावजूद उन्होंने वापस आकर कंट्रोल रूम को इत्तला क्यों नहीं दी थी। लेबॉर्ट्री में धमाके शुरू होने के बाद उन मुहाफिजों की पार्टी के इंचार्ज ने कमांडो को हमारे बारे में अपने शुबे से आगाह किया था और हमारे हुलिये भी बताए थे। बाद में दारा ने उन हुलियों से मुझे और जानकी को शनाख्त किया था। हमारा चौथा साथी जो वापस जाने वाले मुहाफिजों की नजरों में नहीं आया था, उसके बारे में फर्ज कर लिया गया था कि वो फांग था, जो पहचान लिए जाने के डर से सामने नहीं आया था। जनरल खोराट को सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने कमांडर और उन 4 मुहाफिजों को खत्म कर दिया था। सबसे दिलचस्प खबर यह थी कि जनरल खोराट और दारा में एक जोरदार झड़प भी हुई थी। जनरल खोराट ने इस तबाही का जिम्मेदार दारा को करार दिया था, जबकि दारा उसके आदमियों को जिम्मेदार ठहरा रहा था जो थाई को चियांग साइन से उठाकर यहाँ ले आए थे, और मैं थाई को छुड़ाने के लिए उनके ताक़ुब में यहाँ पहुंच गया था। बूमा ने इस बात पर भी हैरत का इजहार किया कि जनरल खोराट ने दारा की बातें कैसे बर्दाश्त कर ली थी और उसे गोली से क्यों नहीं उड़ा दिया। तुम दारा को जानते नहीं हो, मैंने बूमा की तरफ देखते हुए कहा। वो दुनिया का यार तरीन आदमी है। जनरल खोराट के चंद बहुत ही खास आदमी थाईलैंड में उसके साथ रहे हैं। उसने यकीनन को ऐसी राह तलाश कर ली है कि जनरल खोराट जैसा शख्स भी उसकी तौहीन ना कर सके। बहरहाल ये बताओ, तुम सब लोगों को कंट्रोल रूम में तलब क्यों किया गया था? तुम लोगों की तलाश के लिए कुछ नए प्रोग्राम बनाए गए हैं। दूसरे इलाकों से भी 100 से ज्यादा आदमियों को तलब कर लिया गया है, जिनमें से कुछ तो पहुंच गए हैं और कुछ सुबह होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे। कुछ पार्टियों ने तलाश शुरू कर दी है और कुछ पार्टियां सुबह रवाना होंगी। घेरे की सूरत में 20-25 मील तक के इलाके को छान मारा जाएगा। वैसे जनरल का ख्याल है कि लेबॉर्ट्री की तबाही के बाद तुम लोग यहाँ रुकोगे नहीं बल्कि फरार का रास्ता तलाश करोगे। इसीलिए दोनों तरफ के दरियाओं पर ज्यादा तवज्जो दी गई है और हुक्म दिया गया है कि किसी भी मुश्तबा शख्स को, खा वो गार्ड की वर्दी में हो, देखते ही गोली मार दी जाए। और तुम, क्या तुम्हें भी किसी पार्टी में शामिल किया गया है? नहीं, मुझे इस बात का कुछ अंदाजा था, इसलिए मैंने कंट्रोल रूम पहुंचने से पहले ही लंगड़ाना शुरू कर दिया। जिस आदमी को नया कमांडर बनाया गया है वो मेरी टांग की तकलीफ से वाकिफ है, इसीलिए मेरी ड्यूटी कंट्रोल रूम में ही रखी गई है। गुड। दारा के बारे में कोई और बात? फिलहाल कुछ नहीं। मेरा ख्याल है जनरल खोराट 1-2 दिन यहीं रहेगा। उसके बाद ही दारा के बारे में कुछ पता चल सकेगा कि उसका क्या प्रोग्राम बनता है। इसका मतलब है कि इस दौरान हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जाहिर है तुम लोग तो कॉटेज से बाहर भी नहीं झांक सकोगे। उसके बाद भी हम देर तक बातें करते रहे। फिर बूमा और रूफा अपने कमरे में चले गए। मैंने थाई की तरफ देखा, वो सो रही थी। जानकी और सोनिया दरी पर लेटी सोने की तैयारी कर रही थी और मैं दीवार से टेक लगाए बैठा सूरत हाल का जायजा ले रहा था। यह गनीमत था कि उनमें से किसी के जहन में अभी तक ये ख्याल नहीं आया था कि हम किसी कॉटेज में भी हो सकते हैं। अब तक यही समझा जा रहा था कि फांग हमें किसी खुफिया जगह पर पनाह दिए हुए है, लेकिन मेरा ख्याल था कि 1-2 दिन मजीद तलाश के बाद भी उन्हें हमारा सुराग जब नहीं मिलेगा तो शायद किसी के जहन में ये बात भी आ जाए और इलाके में वाकई कॉटेजेस की चेकिंग भी शुरू हो जाए। ऐसी सूरत में हमारे पास कोई मुतबादिल जगह नहीं थी सिवाय इसके कि हम भाग खड़े होते और गोलियों का निशाना बन जाते।
किसी हंगामी सूरत हाल में हम भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला थाई का था। जाहिर है हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। थाई इस काबिल नहीं थी कि होश में होते हुए भी चंद कदम चल सकती। पिछले 3-4 दिन से उसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसके लिए बाकायदा इलाज की जरूरत थी और यहाँ कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी, सिवाय इसके कि हीरोइन की मिकदार को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और इससे मामूली सा फर्क भी नहीं पड़ा था। जनरल खोराट 3 दिन यहाँ रुका रहा और ये 3 दिन हमने बड़ी अजियत में गुजारे। बूमा से हर रोज शाम को हमें रिपोर्ट मिल जाती थी। दिन के वक्त हुफा भी बच्चे को साथ लेकर उस तरफ का चक्कर लगाती थी। कुछ मालूमात उससे भी हासिल हो जाती थी। जनरल खोराट वापस चला गया। हमारी तलाश का मामला भी कुछ सर्द पड़ गया। दूसरे इलाकों से मंगवाए हुए बेशतर गार्ड्स वापस भेज दिए गए, लेकिन उनकी अच्छी खासी तादाद अब भी यहाँ मौजूद थी। उस अरसे में हमारी तरफ से चूंकि कोई सरगर्मी सामने नहीं आई थी, इसीलिए फर्ज कर लिया गया कि हम लोग किसी न किसी तरह ट्रायंगल से फरार हो चुके हैं। 2 दिन पहले आधी रात के बाद दरिया मेकांग में कश्ती भी देखी गई थी जिस पर फायरिंग की गई और वो कश्ती तेजी से लाओस के साहिल की तरफ भाग गई थी और ये फर्ज कर लिया गया कि हम उस कश्ती पर फरार हो गए हैं। जनरल खोराट वापस आ चुका था और दारा और उसके साथियों के बारे में ये प्रोग्राम बना था कि 2 दिन बाद वो भी जनरल खोराट के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये इत्तला मेरे लिए खासी अहम थी और मैं ये सोच रहा था कि अगर दारा जनरल खोराट के हेडक्वार्टर पहुंच गया तो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। हमें उससे पहले उसका कोई बंदोबस्त करना होगा। और जब मैंने बूमा से बात की तो वो बोला, ये तो तय है कि जल्द या बदेर हमारा राज फाश हो जाएगा, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि ऐसा वक्त आने से पहले यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। तुम्हारे जहन में कोई प्लान है क्या? मैंने पूछा। जिस रोज दारा वगैरह रवाना होंगे उस रात एक कश्ती खुर्दनोश का सामान लेकर आएगी। ये सामान हर दूसरे दिन लाओस से आता है। एक कश्ती आ जाएगी और अगली 2 दिन बाद अगर हम कोशिश करें तो उस कश्ती पर कब्जा कर सकते हैं। गुड। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बंदरगाह, मेरा मतलब है वो घाट यहाँ से कितनी दूर है जिस पर उन कश्तियों की आमदरफ्त होती है? यहाँ से 11 मील दूर मेकांग के साहिल पर वो घाट है। अगरचे वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। वहाँ सामान रखने के लिए बहुत बड़ा शेड बना हुआ है। एक भारी मशीन गन भी नस्ब है। 6 गार्ड्स मुस्तकिल तौर पर वहीं रहते हैं। उसके अलावा जिस रात कश्ती सामान लेकर आती है 2-3 मुहाफिजों का मजीद इजाफा हो जाता है। ये वो मुहाफिज होते हैं जो कश्ती के साथ आते हैं और जो ट्रक सामान उठाने के लिए आता है कम से कम 2 आदमी उस पर भी होते हैं। इसका मतलब है कि हमें कम से कम 1 दर्जन आदमियों का सामना करना पड़ेगा। कश्ती आमतौर पर किस वक्त आती है? रात के आखिरी पहर 2 और 4 बजे के दरमियान। लेकिन पहले हमें दारा वगैरह का प्रोग्राम मालूम करना पड़ेगा। अगर वो दिन के वक्त गए तो हम उनका पीछा नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता रात को। पर हम उनका पीछा करेंगे कैसे? थाई तो इस काबिल नहीं है कि चंद कदम भी चल सके। 11 मील, ये फासला कैसे तय होगा? मैं इसका बंदोबस्त भी कर लूंगा, बूमा ने कहा, लेकिन पहले दारा वगैरह का प्रोग्राम मालूम करना जरूरी है। उसके बाद 1 दिन और गुजर गया। अगले दिन शाम को बूमा ने हमें बताया कि हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। हुफा ने भी अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था। उसने बैग में ज्यादातर बच्चे के कपड़े और दूसरी चीजें ही रखी थी। फीडर और दूध के 2 टिन उसने सबसे पहले बैग में रखे थे। उससे अगले रोज शाम को बूमा वापस आया तो उसके चेहरे पर सनसनी के तासुरात नुमाया थे। दारा और उसके साथी आज रात 11 बजे रवाना हो रहे हैं। रवानगी के लिए रात का वक्त राजदारी के ख्याल से रखा गया है। वो एक बड़ी जीप पर होंगे जिसमें उनकी हिफाजत के लिए 4 मुहाफिज भी साथ होंगे। हम लोग किस वक्त रवाना होंगे और बंदोबस्त क्या होगा? मैंने बंदोबस्त कर लिया है। मैंने एक जीप ताड़ ली है। मैं 8 बजे यहाँ से चला जाऊंगा और 10:30 बजे जीप लेकर आ जाऊंगा। तुम लोग तैयार रहना, हम फौरन ही रवाना हो जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 5 मील आगे निकलकर हम उनका इंतजार करेंगे। बूमा खामोश हो गया, लेकिन ये खामोशी चंद सेकंड से ज्यादा तवील साबित ना हुई। हम एक बार फिर अपने उस मंसूबे की तफसीलात का जायजा ले रहे थे जिस पर हम सबकी जिंदगियों का दारोमदार था। बूमा जा चुका था। हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। गोल्डन ट्रायंगल, दुनिया की खतरनाक तरीन जगह जहां से पूरी दुनिया में मौत बांटी जाती थी। जनरल खोराट एक जुनूनी और पागल कुत्ता था जिसे चीन की फौज भी पट्टा नहीं डाल सकी थी। वो इस सरजमीन का हुक्मरान था। ये वो खित्ता था जिसकी जमीन जनरल खोराट और उसके हमपेशा लोगों के लिए तो सोना उगलती थी, मगर दूसरों के लिए यहाँ से मौत उगती थी। कोई अजनबी आज तक मौत की इस वादी में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका था और हम इस खूनी अजदहे के जबड़ों में फंसे हुए थे। आज शायद उस सरजमीन पर हमारा आखिरी मार्का होता और किसी किस्म की पेशनगोई करना मुमकिन नहीं था। दारा हमारे हाथों मारा जाता या हम जहर उगलने वाली इस जमीन के लिए खाद बन जाते। मैंने कई मरतबा हुफा की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात से भी उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो जराइम पेशा औरत थी। तवील अरसे तक कानून से आंख में चोली खेलती रही थी और फिर कानून से तहफ़्फ़ुज़ का लालच देकर उसे यहाँ पहुंचा दिया गया। वो 4 साल से यहाँ थी। ये एक ऐसी जेल थी जहाँ अगरचे हर किस्म की आज़ादी हासिल थी, पर यहाँ से निकलने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था।
بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے کسی طرح سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی جنرل کھوراٹ کے آدمیوں کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے. ہر شخص یہاں سے نکلنا بھی چاہتا تھا اور جنرل کھوراٹ کا وفادار بھی تھا. یہاں آنے والے ہر شخص کو فوجی تربیت دی جاتی تھی. جنرل کھوراٹ نے یہاں جدید ترین اسلحہ جمع کر رکھا تھا اور کئی مرتبہ یہ گولہ بارود استعمال بھی ہوا تھا. یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں.